It is my pleasure and privilege to now introduce a Hindu monk from the pious holy land of India to enlighten us with his knowledge on religion and spirituality. Please welcome Swami Vivekananda. In this culture, we understand that God is our making. We use Him for human emancipation rather than seeing Him as a supreme power which rules us. My dear young friends, I am happy to be amongst you all today. Let me share my limited knowledge on religion and spirituality with you. God is within us all. Divinity resides within all things. Our Vedantic culture admits that all purity and perfection and strength are in the soul already. Faith, sympathy, fiery sympathy, faith in ourselves. This is the secret of greatness. आप लोग पूजा किसी भी वस्तु की कर सकते हैं, पर हां, उसमें ईश्वर के दर्शन होने चाहिए। किसी मूर्ति या चित्र को ईश्वर समझना भूल है। ईश्वर तो सर्वव्यापी है। भक्ति तो तुम्हारे अंदर ही है, केवल उसके ऊपर काम कांचन का पर्दा पड़ा हुआ है। एकाग्रता की सहायता से मानव सर्वोत्तम सत्य तक पहुंच सकता है। स्वयं पर विश्वास हो तो मानव कभी विचलित नहीं हो सकता। जब आप खुद को पहचान लेते हो, तब ईश्वर को अपने अंदर ढूंढ लेते हो। मेरे गुरुजी कहते थे, लोटा भी ईश्वर है और कटोरी भी ईश्वर है। हम सभी में ईश्वर है और हम सभी ईश्वर का ही अंश है। नेवर क्वारल अबाउट रिलीजन। ऑल क्वारल्स एंड डिस्प्यूट्स कंसर्निंग रिलीजन सिंपली शो दैट स्पिरिचुअलिटी इज नॉट प्रेजेंट। Fear not, my friends. रुको. Why do you fear? घबराओ मत. The moment you fear, you are nobody. It is fear that is the root cause of misery in this world today. Fear alone is the cause of all superstitions. And it is fearlessness that brings heaven in a moment. All powers are within you. You can do anything and everything. Stand up and express the divinity within you. Believe in yourself. Arise, awake, and stop not till the goal is achieved. उठो, जागो तथा लक्ष्य प्राप्ति होने तक रुको मत। नमस्कार। आध्यात्म विद्या मंदिर
and Vikram Academy of Performing Arts presents Yug Nayak Swami Vivekanand. Inspired by Param Pujya Swami Shri Viditatmanand Ji of Tattva Tirth, Ahmedabad, and Param Pujya Swami Shri Sarvasthanand Ji of Ramkrishna Kendra, Rajkot. Script is based on the books like Yug Nayak Vivekanand, Ramkrishna Vachanamrut, and the complete works of Swami Vivekanand. The script is written by Shri K.S. Jaunpuri, Dr. Vikram Panchal, Dr. Rekha Mukherjee, Shri Shaunak Vyas, and Shri Abhay Pratap. Sound engineer Parth Raval. Art direction and dance choreography Bijoy Shivram. Sets Sayonara, Ahmedabad. Lights Rajesh Mahida, Harry Upadhyay. Makeup Hetul and Akash Tapodan. Music songs composed by Shri Shishir Bhatt. Background music Shri Prathamesh Bhatt. Costumes Dr. Rekha Mukherjee. Props Rishikesh Mehta. Sound recordist Ronak Mekhwan, Harmony Studio. Concept and direction Dr. Vikram Panchal. Now we present before you Yug Nayak Swami Vivekanand. Give me a few men and women who are pure and selfless, and I shall shake the world. ये थी युग नायक स्वामी विवेकानंद की गर्जना, जिनका जन्म हुआ कलकत्ते में 12 जनवरी 1863 सोमवार के दिन सुबह 6:49 पर नरेन का जन्म हुआ। सन 1871 में नरेन 8 वर्ष के हो गए। तब मेट्रोपॉलिटन इंस्टीट्यूट में उनका नामांकन कर दिया गया। मां ने सिखाया था, सच का साथ दो, चाहे कितनी भी मुश्किल आए। एक बार एक शिक्षक ने नरेन को मारा, जबकि उनका कोई कसूर नहीं था। नरेन ने स्कूल के हेडमास्टर श्री विद्यासागर को जाकर सब बात सच सच बताई और माता से भी कुछ नहीं छुपाया। माता ने नरेन को सिखाया कि सच का साथ कभी मत छोड़ना, आजीवन पवित्र रहना और अपनी मर्यादा की रक्षा करना, राजा हरिश्चंद्र की तरह। नरेन अब बड़े हो गए। 1880 में प्रेसिडेंसी कॉलेज के सामान्य विभाग में प्रवेश पाने के बाद नरेन वहां जाने लगे। उनका व्यक्तिगत जीवन उन दिनों एक बड़े परिवर्तन के सन्मुख खड़ा था। बचपन की सदैव हास्यमय चपलता छोड़कर अब उन्होंने यौवन में पदार्पण किया। कॉलेज में खेलकूद में ज्यादा समय बीतता था। नरेन को अपने हर दोस्त की हर समस्या के बारे में पता रहता था और वे अपने दोस्तों की अपने ही तरीके से मदद भी करते थे। नरेन के जीवन की गति और उद्देश्य एक आम आदमी की समझ से परे थे, लेकिन फिर भी उन दिनों दक्षिणेश्वर में एक ऐसे व्यक्ति थे जो उन्हें सही सही जानते थे और एक ऐसे आध्यात्मिक जीवन का मतलब बताने के लिए बड़ी बेचैनी और उत्सुकता से नरेन का इंतजार कर रहे थे। ये एक मजेदार किस्सा है। देखिए धीरे धीरे किस तरह घटनाएं और संजोग नरेन को उनकी ओर ले जा रहे हैं। ये आपकी फ्री क्लास है। बताएं, आप क्या सीखना चाहेंगे मुझसे? सर, क्या आप हमें विलियम वर्ड्सवर्थ की पोएम पर ज्ञान दे सकते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ? आप लोग एक्सकर्जन कविता पढ़ रहे हैं क्यों? Am I right? Yes, sir. My boys, वर्ड्सवर्थ की कविता को समझना किसी समाधि या ट्रांस से कम नहीं है। प्रकृति का ऐसा जीवन चित्रण उन्होंने किया है कि आपको ईश्वर का साक्षात्कार हो जाता है। सुप्रीम कॉन्शियसनेस, यू सी। कभी देखी या सुनी है ऐसी अवस्था? एक्सकर्जन पोएम में
आप ऐसी ही ट्रांस मनोस्थिति को समझ पाएंगे। Well, you boys are still too young. वास्तव में ये बड़ी दुर्लभ अवस्था है और आज के इस दौर में काफी मुश्किल है एकाग्रता में अपने आप को समेट पाना। लेकिन जीवन की इस आपाधापी में भी एक ऐसे शख्स को मैं जानता हूँ जो इस मंगलमय अवस्था तक पहुँचे हैं, और वो है दक्षिणेश्वर के रामकृष्ण परमहंस। रामकृष्ण परमहंस का समग्र अस्तित्व ही समाधि समान है। उनके दर्शन मात्र से ही मन प्रफुल्लित हो उठता है। Just one look at that man and you feel sheer connectivity with the Almighty. Young boys, I insist that you must pay him a visit. आप लोग स्वयं जाकर उन्हें मिलें, आप समझ जाएंगे कि ट्रांस यानी समाधि अवस्था किसे कहते हैं। रामकृष्ण परमहंस। जीवन में शिक्षक की भूमिका क्या है, इस विषय पर स्वामी जी ने कहा है, No one was ever really taught by another. Each of us has to teach himself. The external teacher offers only the suggestions, which rouses the internal teacher to work to understand things. प्रोफेसर हेस्टी के शब्द नरेन के कानों में गूंज रहे थे। समाधि, इस एक शब्द ने उनके अंदर ऐसी जिज्ञासा जगा दी थी कि वे हर पल इसी अवस्था को पाने की सोच में लगे रहते थे। बचपन में नरेन सीताराम और शिव का ध्यान करते थे, लेकिन ब्रह्म समाज से जुड़ने के बाद वे निराकार के ध्यान में लीन हो गए। इन दिनों सारी चिंताओं को दूर कर अपने मन को निश्चल रखने का अभ्यास करते थे। धर्म के अनुशीलन की तीव्र इच्छा से ही वे ब्रह्म समाज में आ गए थे। वहां से बहुत कुछ पाने की आशा उन्होंने पाल रखी थी तथा इस ब्रह्म समाज ने भी उनके व्यक्तित्व के विकास में बहुत सहायता की थी। नरेन का मानना था कि धर्म अनुभूति का विषय है। अगर हृदय और बुद्धि में कभी विवाद छिड़ जाए तो स्वार्थ रहित शुद्ध हृदय के आदेश और अनुभव को ही स्वीकार करना चाहिए। ब्रह्म समाज में आवागमन करने के समय यही अनुभव नहीं पाने के कारण ही नरेन के मन में यह असंतोष उभर आया था और वे सत्य की खोज में आध्यात्मिकवादियों से मिलने लगे, क्योंकि वे मानते थे कि यदि ईश्वर है तो हमें वो दिखने चाहिए, यदि आत्मा है तो हमें उसकी प्रत्यक्ष अनुभूति होनी चाहिए, अन्यथा उन पर विश्वास न करना ही अच्छा है। ढोंगी बनने के बजाय स्पष्ट रूप से नास्तिक बनना अच्छा है। हे प्रभु, प्रभु तुम मुझे अपने सच्चे स्वरूप का दर्शन करने का अधिकारी बनाओ। मैं आपको प्रत्यक्ष देखना चाहता हूं। मैं आपको पाना चाहता हूं। हे ईश्वर, सभी लोग कहते हैं कि ईश्वर सब में है, सभी आपका ही स्वरूप है, तो आप दिखते क्यों नहीं? मुझे आपको देखना है, मुझे आपको देखना है। आप मुझे दर्शन दीजिए ईश्वर, मुझे दर्शन दीजिए। प्रणाम महाराज। जीते रहो बच्चा, कल्याण हो। महाराज, मन में एक प्रश्न उठता है, क्या आपसे पूछ सकता हूं? क्या बात है बच्चे?
क्यों परेशान हो? मैं कौन हूं? तुम सच्चिदानंद स्वरूप हो बेटे। तो मैं दुखी क्यों होता हूं? तुम परिस्थिति को अपने साथ जोड़ते हो, इसलिए दुखी होते हो। महाराज, क्या आपने ईश्वर को देखा है? Good morning, Father. Good morning, my son. May God bless you. Father, may I ask you one question? Yes, my son. Father, where can one find God? What is God's address? God is a supreme power, and where He dwells, the place is called heaven. And whenever we are in trouble, He comes to earth to help. Father, then who was Jesus Christ? Well, Jesus was the Son of God. How does one reach God? How can I see Him? Very simple, my child. Live life the way He has shown us. Follow the 10 commandments, and you have made your way to heaven. Father, you surely must be living on the path shown by God. Yes, my son. Then, have you seen God? सलाम वालेकुम मौलवी साहब। वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह आपको सलामत रखे। मौलवी साहब, क्या मैं आपसे कुछ सवालात कर सकता हूँ? हाँ जरूर। आप हर रोज कितनी बार नमाज पढ़ते हैं? 5 बार। क्यों? कुरान भी पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं। हाँ बेटे, लेकिन बात क्या है? आप अल्लाह के बताए हुए असूल पर चलते हैं? बेशक। तो मुझे बताइए, अल्लाह कहाँ रहते हैं? अल्लाह जर्रे जर्रे में खुदा का नूर है। बेटे ये पूछो अल्लाह कहाँ नहीं, अल्लाह हर एक के दिल में बसता है। तो हजरत मोहम्मद पैगंबर कौन थे? हजरत मोहम्मद साहब का जन्म काबे में हुआ था और वो खुदा का पैगाम लेके हमारे बीच आए, इसलिए वो पैगंबर कहलाते हैं। आपने अल्लाह को देखा है? अल्लाह। नरेंद्रनाथ कई धर्मगुरुओं से मिले और सभी के सामने एक ही प्रश्न रखा, क्या आपने भगवान को देखा है? किंतु सभी मौन रहे। धीरे धीरे नरेंद्र का आध्यात्मिक प्रयास तीव्रतर रूप धारण करने लगा। उन दिनों नरेंद्र महर्षि देवेंद्रनाथ ठाकुर से ध्यानाभ्यास करना सीखते थे, किंतु प्राणों की पिपासा मिटती नहीं थी। अभाव जनित यह असंतोष जब असह्य हो गया, तब उन्हें याद आई महर्षि जी की। महर्षि गंगा नदी में एक नाव में बैठे उपासना में लीन थे और वहीं नरेंद्र जा पहुंचे। आओ नरेंद्र, तुम भी मेरे साथ ध्यान करो। क्या बात है नरेंद्र, कुछ हुआ? क्या ध्यान भंग हुआ या फिर किसी ने कुछ कहा? बोलो, क्या बात है? कुछ पूछना चाहते हो? पूछो, घबराओ नहीं। महर्षि जी, क्या आपने भगवान को देखा है? बालक, तुम्हारी आंखें तो ठीक योगियों के जैसी हैं। हे भगवान, मैं कहां जाऊं? कौन मुझे आपके दर्शन करवा सकता है? मैं पागल हो जाऊंगा। हे प्रभु मुझे दर्शन दो। मुझे आपके होने का प्रमाण चाहिए, वरना मैं अपने आप को नष्ट कर दूंगा। मुझे रास्ता दिखाओ,
मुझे रास्ता दिखाओ ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ। नरेन, नरेन, सुनो, আমি दक्षिणेश्वर যাচ্ছি। मैं दक्षिणेश्वर जा रहा हूँ, साथ में हरि और राम भी आ रहे हैं। तुम ये आस्ते चाहो कि तुम आना चाहते हो? दक्षिणेश्वर? अरे नरेन, भूल गए क्या? उस दिन तूने मेरे घर पे आके गाना गाया था, वो रामकृष्ण परमहंस जी को कितना पसंद आया था, और उन्होंने कहा था कि जब भी मैं दक्षिणेश्वर आना चाहूँ तो तुम्हें अपने साथ लेकर आऊं। तो चलो हम दक्षिणेश्वर जाते हैं। मानो भगवान ने ही सुरेंद्रनाथ को यह सुझाया कि नरेन को दक्षिणेश्वर ले चले और श्री रामकृष्ण परमहंस के साथ उनकी भेंट करवा दे। नरेन को तुरंत प्रोफेसर हेस्टी की बात याद आ गई। नरेन के मन में ईश्वर को देखने की तमन्ना इतनी दृढ़ हो गई थी कि वे उन्हें देखने के लिए कहीं भी जाने को तैयार थे। नरेन कितने लोगों से मिल चुके जो उन्हें ईश्वर प्राप्ति का सही रास्ता बता सके, लेकिन किसी ने उनकी समस्या का समाधान नहीं किया। अब आज यह दिन आ ही गया जिसका ठाकुर यानी श्री रामकृष्ण को कई सालों से इंतजार था। आज गुरु और शिष्य का मिलन होने वाला है। मनुष्य हाड़ मांस के पुतले के रूप में जन्म लेता है, लेकिन उस पुतले में सामाजिक, चैत्रिक और सांस्कृतिक ज्ञान रूपी चेतना डालने वाला है गुरु। गुरु कोई भी स्वरूप का हो सकता है। गुरु की ना तो कोई जाति होती है, ना ही कोई धर्म। माँ, पिता, सखा, भाई, बहन या कोई प्राणी जिससे हमें सीख मिले, जो हमें सच्ची राह बताए, या वो जो हमें इंस्पायर करे, वो है गुरु। जिसमें कौटिल्य की बुद्धि हो, द्रोणाचार्य की इच्छा शक्ति हो, भीष्म की दृढ़ता हो, शिवजी जैसी वीरता हो, जिसकी निर्णय शक्ति राजा हरिश्चंद्र जैसी हो, जिसका व्यवहार बुद्ध के समान हो और जिसमें कृष्ण रूपी ज्ञान हो, वो सही में गुरु होता है। जो सिखाए वो शिक्षक है, मगर जो जीवन का लक्ष्य बताए वो गुरु है। गुरु जो उठे तो आकाश की ऊंचाई को नतमस्तक कर दे। शिष्य अगर थोड़ी सी नम्रता दिखाए तो गुरु ब्रह्मांड भर के प्यार लुटाए। वो चाणक्य था जिसने चंद्रगुप्त मौर्य को चक्रवर्ती राजा बनाया, और वो श्री रामकृष्ण परमहंस थे जिन्होंने नरेन को स्वामी विवेकानंद बनाया। यह गुरु की ही महिमा है, जिसके कारण ईश्वर को ढूंढने निकला नरेन गुरु की शरण में आते ही ईश्वर को प्राप्त कर सका था। इस विषय पर स्वामी जी ने कहा है, After so much austerity, I have understood this as the real truth. God is present in every jiva. There is no other God beside that. Who serves jiva, serves God indeed. जागो माँ कुल कुंडलिनी, जागो माँ कुल कुंडलिनी, तुमी नित्यानंद स्वरूपिणी, तुमी ब्रह्मानंद स्वरूपिणी, प्रसूक भुजगाकारा आधार पद्मवासिनी, जागो माँ कुल। अरे नाच गाना बंद करो, ये मंदिर है मंदिर, यहाँ ये सब शोभा नहीं देता। अरे भगवान की भक्ति शास्त्रोक्त विधि विधान से होती है, ऐसे नाच गाने से नहीं। ये रामकृष्ण को छोड़ो, ये तो पागल है पागल। हाँ, ये हाजरा बिल्कुल सही कहता है। अरे तुम तो वो ही हो ना, उस दिन गाना गाया था। जी हाँ, मेरा नाम नरेन है। खूब भालो, खूब भालो। अरे देखो देखो सब लोग यहाँ देखो, ये लड़का नरेन बड़ा ही तेजस्वी है
और खूब भालो गान गाए। बेटा नरेन, कोई गाना सुना दे तो। अब ठाकुर जी, लेकिन मुझे 2-4 बांग्ला गाने ही आते हैं। अरे कोई बात नहीं, कोई एक ही गाना सुना दो। মনো চল নিজ নিকেতনে, মনো চল নিজ নিকেতনে, সংসার